Hello students, good evening to all of you. Hope you all are well. So students, today this is the exercise 8.2 is already going on, and students, question number 1 to 18 I already completed in the previous video. So today I am going to start from the question number 19. So in the question number 19, the circuit is given here. Okay, and in this circuit you have to calculate the total equivalence resistance between the P and Q, and then in the second part you have to calculate the total equivalence resistance between the X and Y. So these questions will be solved in the two part. Let's see how can we solve these questions. So first of all we have to find the total equivalence resistance between the P and Q. Okay, so because here this is the point and this is just another point, this is P point, this is Q point, and the current, if the current, suppose the current is flowing from here, from this path, from this way, then here the current will be divided into the two part. Okay, so one part of the current will go in this directions and another part of the current will go in this directions. So what we observe here, that if the current is just divided here the two part, so it means these two combinations is just in the parallel way. किस way में हो जाएगा ये? Parallel way में हो जाएगा. So students, now here, but what you observe that the upper part of the current here, the 3 ohm and 3 ohm are connected in the series because the path of the current is here same. Okay, so 3 ohm and 3 ohm is connected here the in series order. So total equivalence resistance of the upper part will be 3 plus 3, it means 6 ohm. 6 ohm will be upper part. Okay, so here is single resistance is connected here, so it is the 3 ohm. So 6 ohm and 3 ohm will be in the parallel way. So how can we calculate the resistance in the parallel way? The very simple formula is here. So R 1 upon R, between P and Q we are calculating the equivalence resistance between the P and Q. So we'll be right here 1 upon R PQ, means the equivalence resistance between the P and Q is equal to 1 upon upper part, total resistance is here 3 plus 3 6 plus 1 upon here is 3 ohm resistance. Okay, so by solving this one you will be get that the LCM is here 6, and how can you just obtain it? 6 by multiplying 2 in the denominator as well as in the numerator. So this is 6, so here no need to multiply anyone, so here will be 1 plus here multiply by the 2, so 2 plus 1 will become the 3 upon 6, and if you solve this quantity you will be obtain 1 upon 2. So 1 upon R PQ is equal to 1 upon 2. So just we have to find the equivalence resistance R PQ, so it will be 2 ohm. So students, this is the resistance between the P and Q. Equivalence resistance will be 2 ohm. Now it turns to find the equivalence resistance between the X and Y. So how can you find the X and Y, the value between the X and Y? Same procedure is here. So students, again X and Y, because we make this resistance as a single resistance, we convert this resistance as a single resistance. Okay, so what is the equivalence resistance between the P and Q? It is the 2 ohm. Now this diagram is changed and this diagram will become like this way. कैसे बनेगा? ये ऐसे हो गया, यहाँ पे हो गया X point, और this is the 3 ohm, ये 3 ohm का resistance यहाँ पे लग गया 3 ohm. Then ये तीनों जो resistance है इनका तीनों का एक सिंगल बन गया है, which is here 2 ohm. ठीक है, तो आगे हम 2 ohm ऐसा बना दिया मैंने 2 ohm. अगेन हियर इज लास्ट इज 3 ohm रेजिस्टेंस, तो ये 3 ohm का रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, और ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया? Y पॉइंट आ गया. ठीक है, X पॉइंट और Y पॉइंट. सो व्हाट यू ऑब्जर्व हियर स्टूडेंट्स, यू ऑब्जर्व दैट ऑल 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज वे. सो वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन X and Y directly by adding these 3 resistance. Okay, so we can write here R between the X and Y. So X and Y is equal to 3 plus 2 plus 3 is equal to 3 plus 2 5, 5 plus 3 8. So 8 ohm is the total equivalence resistance between X and Y. I hope you understood this question. Okay, now next question number 20 is two resistance of the 2 ohm and 3 ohm are connected in series in parallel with a battery of 6 volt and the negligible internal resistance. For each case draw the circuit diagram and calculate the current through the battery. Very simple questions. So it is
for you. You can try it. Okay, if you have any problem, then you can ask to me later. Okay, so now I am just directly jump on the question number 22. ठीक है, so this is the 19, 20 and 21. You have to try it. Okay, so now question number 22. So 22 is here. This is the circuit is given here. Electrical circuit is given here. Two resistance 4 ohm and 6 ohm is connected in the parallel way, and the resistance also connected with the battery. The battery supply a current of 0.5 ampere. Okay, what you have to find here? So find the current in each resistance. Each R means each resistance. You have to find here the value of current in each of the resistance, means the amount of the current in the 4 ohm resistance and the amount of the current in the 6 ohm resistance. So how can you find? So students, to find the current, we apply here the Ohm's law, which is I is equal to V upon R. I is equal to V upon R. The value of V is not given here, but R we have given here. So first of all, we have to calculate the value of V. V means terminal voltage we have to calculate. So for this one, to calculate the terminal voltage, we have to find the equivalence resistance of the circuit. So students, here 4 ohm and 6 ohm is connected in the parallel way. So we have to find the equivalence resistance. So चलिए इनका equivalence resistance find करते हैं. So 1 upon R equal is equal to 1 upon 4 प्लस 1 अपॉन 6. दोनों का जो एलसीएम होगा 4 और 6 का, ये हो जाएगा 12. यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 12. ओके, सो नाउ आर इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास? आर इक्वल इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5. सो 5 2 जा 10, कितना आया 2 कैरी, 5 4 जा 20. सो 2.4 ओम. टोटल इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 2.4 ओम. Now students, 2.4 ohm. Now find the value of V. Terminal voltage find करना. So V is equal to, कैसे find होगा? The value of I is given here, means the battery send the current as 0.5 ampere. So V is equal to I into R. Small I लिख लो या capital I लिख लो. Okay, चलिए. So I is here 0.5 into R equal. ये R equal कितना है हमारे पास? 2.4 आ रखा है. ओके, 2.4 आ रखा है. सो स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. सो 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 हो गया. 1 2 1 2 बिफोर 2 नंबर. सो इट मीन्स कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास? जो V आया, ये आया 1.2 वोल्ट. इट मीन्स जो यहाँ पे बैटरी यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ये कितने की अप्लाई कर रहे हैं? 1.2 वोल्ट की हम बैटरी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं. नाउ अब हमें फाइंड करना, फाइंड द करंट इन ईच ऑफ द रेजिस्टेंस. चलिए अब यहां पे फाइंड करना करंट. दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशंस, एंड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होता है? जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है. सो इट मींस द टर्मिनल वोल्टेज इज हियर 1.2. इट मींस द वैल्यू ऑफ हियर V की वैल्यू जो यहां पे होगी वो कितनी होगी? 1.2 वोल्ट यहां भी होगी और 1.2 वोल्ट यहाँ पे भी होगी. सो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो I1 जा रहा है, और इस वाली पाथ पे जो करंट जा रहा है वो I2 जा रहा है. सो नाउ I1, हाउ कैन वी कैलकुलेट I1? I1 इज इक्वल टू, अगेन ओम्स लॉ को हम यूज करेंगे, V अपॉन R1. तो V कितना है हमारे पास? 1.2 डिवाइडेड बाई R1. R1 किसको ले रहे हैं हम? 4 को ले रहे हैं. सो नाउ डिवाइडेड इट, 4 3 जा 12. इट मींस 0.3 एम्पियर. 0.3 एम्पियर का करंट हो गया है इस पे. अब नेक्स्ट वन इज, इस पे कैलकुलेट करो, I2 कैलकुलेट करो. सो I2 इज इक्वल टू अगेन V अपॉन R2. So V is here 1.2 divided by R2. R2 is here 6. So इसको solve करोगे तो कितना आएगा? 0.2 ampere. Now students, how can we verify our answer that it is correct or not? So the cell is total current. How much the total current is withdrawn from the cell is 0.5 ampere. Now the 0.5 ampere is divided into two part. One part is going here and one part is going here. ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करो. I2 कितना है? 0.2. I1 कितना? 0.3. तो 0.3 एंड 0.2 दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 0.5 एम्पियर आएगा. इट मींस हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो क्या है? बिल्कुल सही है. ओके, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस. कोई दिक्कत? चलिए, नो प्रॉब्लम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. चलिए, सो this is again to a question number 24, and here
Calculate the total resistance of the circuit. Find the R equal. Find the R equal. Total resistance of the circuit. The value of R, ये जो यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस है R, ये फाइंड करना है. एंड द वैल्यू ऑफ करंट इन R, इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये मुझे यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट कर रहा है. स्टूडेंट्स 23 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन ट्राई इट. ओके, ये कुछ ऐसी होगा जैसे ये वाला होगा. 23 सेम टू सेम बिल्कुल ऐसी होगा, आप ट्राई करना. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 24. सो हियर हाउ कैन यू फाइंड द आर इक्वल. यहाँ पे मुझे आर इक्वल फाइंड करना है. सो द टर्मिनल वोल्टेज इज गिवन हियर. हाउ मच? V इज इक्वल टू 4 वोल्ट. ये 4 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी यूज हो रही है. एंड द करंट सेंड बाय द सेल इज हियर. I इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 0.4 एम्पियर. ओके. नाउ आर इक्वल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास. आर इक्वल इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई. ओम्स लॉ का यूज कर रहे हैं, V अपॉन आई. सो द वैल्यू ऑफ V इज हियर कितना है 4 एंड डिवाइडेड बाय I कितना हमारे पास 0.4 है. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटा के यहाँ पे क्या कर ले सकते हैं हम 40 डिवाइडेड बाई 4. सो इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 10 ओम. सो इट मीन्स आर इक्वल कितना आ गया हमारे पास, जो पूरा जो सर्किट है उसका जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है, हाउ मच इट इज 10 ओम. नाउ इट्स टर्म टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर दिस अननोन रेजिस्टेंस. कैसे फाइंड करेंगे अननोन रेजिस्टेंस को? द अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द पैरेलल विद द 20 ओम रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इट मीन्स इसका मुझे आर इक्वल फाइंड करना है. सो 1 अपॉन आर इक्वल फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन आर इक्वल इज इक्वल टू 1 अपॉन आर. दिस इज द आर प्लस इट इज कनेक्टेड विद द 20 ओम. सो 1 अपॉन 20 हो जाएगा. चलिए 1 अपॉन आर इक्वल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अभी कैलकुलेट किया मैंने, 10 ओम इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन 20. नाउ स्टूडेंट्स 20 को इधर लाओ. सो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन आर लेफ्ट हो जाएगा. सो दोनों का एलसीएम लो. व्हाट इज द एलसीएम? इट इज 20. ओके, 20 इज एलसीएम. सो नाउ 2 minus 1 is equal to 1 upon R. Now if you solve this one, so you will be obtain, देखो 2 minus 1 upon 20 is equal to 1 upon R. By cross multiplying you will be obtain R is equal to 20 ohm. R is equal to 20 ohm. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या करना फाइंड लास्ट में, द वैल्यू ऑफ I इन R. सो what is the terminal voltage here? 4 volt. So it means 4 volt, the potential, the voltage is here 4 ohm and the voltage is here 4 ohm. In the parallel combinations voltage remain constant. So दोनों में बराबर वोल्टेज होगा. तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू होगी ये कितनी होगी 4 वोल्ट होगी. एंड जो आर की वैल्यू है कितना निकाला मैंने यहाँ पे 20 ओम निकाला. सो अगेन हाउ कैन यू कैलकुलेट द आई, स्मॉल आई मैंने, चलो करंट आई इज इक्वल टू यहाँ पे जो करंट जा रहा है, सपोज जो करंट कितना जा रहा है I1 जा रहा है. ठीक है, और चलो वेट, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे लेट करना I1. सो I1 कैसे निकल जाएगा, I1 इज इक्वल टू अगेन V अपॉन आर. ठीक है, V अपॉन दिस इज R. ओके, सो I1 इज इक्वल टू V कितना है हमारे पास 4 वोल्ट डिवाइडेड बाई what is the value of R now in the, what we calculate 20. So 4 divided by 20, 4 1 जा 4 and 4 5 जा 20. So it means जो I1 हमारे पास आएगा वो कितना आएगा 0.2 एम्पियर. 0.2 एम्पियर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is 25. It is a particular resistance wire has a resistance of 3 ohm per meter. We have a wire and the resistance of the wire is given in such a way that in 1 meter there is a resistance of 3 ohm. It means it is given the specific resistance which is called the resistivity.
ठीक है, कितना दे रखा है 3 ओम पर मीटर। ठीक है, इट मीन्स अगर हमारे पास कोई वायर है और ये कोई वायर है हमारे पास, और इस वायर में क्या है जो पर मीटर है, पर मीटर अगर मैं इसके पार्ट करूं तो पर मीटर में जो रेजिस्टेंस है वो कितने का लग रहा है 3 ओम का लग रहा है। ओके, सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चंस, सो द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 लेंथ ऑफ द वायर, ऐसे हमारे पास जो वायर है वो टोटल कितनी होगी 3 होगी, बट each 1.5 लेंथ, सपोज दिस इज 1.5 लेंथ वायर, यानी कि इसको रेजिस्टेंस कंसीडर कर लो। सो वी हैव गिवन 3 सच टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, विच लेंथ इज 1.5 मीटर। सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो हमारे पास हमारे पास सिंगल जो हमारे पास रेजिस्टेंस वायर है उसका मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सो बिकॉज इन 1 मीटर देयर इज 3 ओम रेजिस्टेंस, सो इन 1.5 टोटल रेजिस्टेंस इन 1.5 मीटर लेंथ टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल आर इज इक्वल टू टोटल, तो इन 1 मीटर देयर इज 3, so length is 1.5, so you will be obtain here 4.5 meter. It means if we take the single wire, so its resistance is 4.5 meter, even its length is 1.5 मीटर। अगर हमारे पास 1.5 मीटर का एक वायर दे रखा है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना दे रखा है हमारे पास 4.5, कितना दे रखा है ओम, सॉरी दिस इज नॉट मीटर, दिस इज ओम। तो अब हमें सच टाइप दिस टाइप ऑफ वायर वी आर यूजिंग हियर 3, सो नाउ ऑल आर कनेक्टेड इन, क्या बोल रखा आगे पढ़ो, सो यहाँ पे हो गया आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन वी हैव टू फाइंड द आर इक्वल। चलिए इसको मैं कुछ ऐसे समझने के लिए ऐसे जोड़ देता हूँ, ये हमारे पास 3 लेंथ कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया है, एंड वन मोर, सो ये कुछ हमारे पास 3 रेजिस्टेंस आ गए हैं, एंड तीनों में 1 का कितना है 4.5 इज हियर, 4.5 हियर आल्सो 4.5 ओम, एंड हियर आल्सो 4.5 ओम तीनों में। सो अभी ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो हाउ कैन यू फाइंड द आर इक्वल, सो 1 अपॉन आर इक्वल इज इक्वल टू, कैसे हो जाएगा आर इक्वल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4.5 प्लस 1 अपॉन 4.5 प्लस 1 अपॉन 4.5, इसको सॉल्व करो 1 2 3 अपॉन 4.5, सो आर इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1.5 ओम। सो यह हमारे पास इस जो टोटल 3 रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड थे, इनका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया 1.5 ओम आ गया है। नाउ द स्टूडेंट्स इन द सेकंड पार्ट क्या बता रखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी विच गिव्स ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इन ईच 1.5 लेंथ। चलिए इसको एक बैटरी से कनेक्टेड कर देते हैं, इस सर्किट को ये मैंने बैटरी से कनेक्टेड कर दिया है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इस बैटरी का क्या करना है, वोल्टेज कैलकुलेट करना है, टर्मिनल वोल्टेज मुझे कैलकुलेट करना है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, सो हाउ कैन यू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी विच गिव्स ए करंट कनेक्टेड इन पैरेलल टू द बैटरी, कितना दे रहा है करंट इसको 2 एम्पियर। इट मीन्स द 2 एम्पियर करंट विल गो हियर, 2 एम्पियर इज हियर एंड 2 एम्पियर करंट इज रनिंग हियर। ठीक है, देयर 2 एम्पियर इस करंट इज रनिंग इन ईच 3 रेजिस्टेंस। ठीक है, तीनों के तीनों रेजिस्टेंस में कितने का चल रहा है 2 एम्पियर एंड 2 एम्पियर का करंट चल रहा है। सो इट मींस द टोटल करंट सेंड बाय द सेल इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2, क्योंकि पैरेलल यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में द करंट विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पाथ। ठीक है, सो ऑल 3 इफ यू जस्ट ऑल 3 if we add all 3 current 2 ampere then we will be get the total amount of the current. Total current is equal to टोटल करंट सेंड बाय द सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। 6 एम्पियर का करंट जो बैटरी यहाँ पे भेज रही है। नाउ इट इज इजी टू कैलकुलेट क्या पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना आसान हो गया। कैसे, हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो V इज इक्वल टू व्हाट इज आई कितना हमारे पास 6 एम्पियर इंटू आर, व्हाट इज आर, अभी आर इक्वल निकाला था मैंने यहाँ पे, ये निकाला है ना। सो चलिए जरा थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। 6 एम्पियर एंड आर इक्वल 4.5 वेट करना जरा है।
ठीक है सर, चलिए। सो 1.5 आर कितना हमारे पास 1.5। सो इसको सॉल्व करोगे सो हमारे पास फाइनली 15 6 90 यानी कि 9 वोल्ट हमारे पास इसका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। Okay, now next is C part is the resistance of 5 meter length of the wire of the same materials but with twice the area of cross sections. अब now we are taking a wire of 5 meter length. इस वायर की जो टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर है अकॉर्डिंग टू सी पार्ट। नाउ वायर सेम मटेरियल्स है, इट मीन्स रो यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है। सो इसका पहले आर निकालो, R1 इज इक्वल टू 5 इंटू कितना है सर 3। सो 5 3 जा 15 ओम, 5 3 जा 15 ओम इसका जो इनिशियल है अभी जो है इसका रेजिस्टेंस है 5 कितना 15 ओम। नाउ हियर द एरिया विल बी चेंज बट लेंथ डज नॉट चेंज। 5 मीटर लेंथ 5 मीटर बट एरिया इज चेंज, एरिया विल बी ट्वाइस। इट मीन्स वी आर यूजिंग हियर R1 इज इक्वल टू कौन सा रिलेशन आएगा, रो L1 अपॉन A1 एंड यहां पे क्या हो रहा है जो A2 है वो ट्वाइस हो जाएगा किसके, A1 के। ठीक है सर। नाउ चलिए फिर R2 क्या आ जाएगा हमारे पास, रो लेंथ सेम है L1 अपॉन A2 की जगह क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ A1। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड करते हैं। सो वी विल ऑब्टेन R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 डिवाइडेड बाई रो दिस इज L1 अपॉन ट्वाइस ऑफ A1। सो फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रो से रो कट रहा है L1 अपॉन A1 इंटू ट्वाइस ऑफ A1 डिवाइडेड बाई L1, L1 to L1 cancel, A1 to A1 cancel, it means we have to find here R2, so R2 will become कितना हो जाएगा सर, oh wait not twice, twice हो रहा है ना, yes twice हो रहा है but length is how much length is here 5 times, length will be 5 times। हाँ लेंथ कितना है सर 5 मीटर है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ ऑफ द वायर of the same materials but with the twice of the cross sections। so यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। चलिए सो स्टार्टिंग टाइम पे यहाँ पे देखना L1 लेंथ थी बट अब लेंथ कितनी हो गई सर 5 टाइम्स हो गई है, 5 ऑफ L1 हो गया है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना 5 ऑफ L1। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 5 ऑफ L1, यहाँ पे चेंज होगा L1 A1 ट्वाइस ऑफ A1, हियर इज 5 ऑफ L1। ठीक है सर चलिए। सो नाउ R2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम 5 अपॉन 2 ऑफ R1। सो इसको सॉल्व करो इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इंटू R1 कितना था इसका 15 ओम, सो 15 हो जाएगा। सो इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे ये कट के अगर इसका इफ़ यू डिवाइडेड इट सो यू विल बी ऑब्टेन 5, इसको 2.5 से कर लो, सो 2.5, सो 2.5 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच, दिस इज द 15। ठीक है सर, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 25, 15 5 जा 75, 7 कैरी 15 2 जा कितना हो जाएगा 30 प्लस 7 37। ओ अगेन सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक्स, अगेन मिस्टेक। हियर इज 3 ओम, इनिशियल रेजिस्टेंस इज हियर 3 ओम। ओके सो 3 ओम, यहाँ पे 3 ओम, ये कटेगा नहीं अभी। ठीक है 3 ओम, देन हियर इज 3 ओम। सो फाइनली कितना मिल जाएगा आपको 7.5 ओम, कितना मिल जाएगा 7.5 ओम विल बी योर आंसर। ओके आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या था, द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर ऑफ लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल्स बट विद द ट्वाइस ऑफ द एरिया। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, जो लेंथ है इट विल बी 5 मीटर, लेंथ उसकी 5 मीटर है, सेम मटेरियल्स है बट एरिया उसका कितना हो गया है, ट्वाइस हो गया है। तो नाउ कंपेरिजन करेंगे, सो कंपेरिजन का क्या होगा, R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल रो L1 अपॉन A1। रो लेंथ कितनी है 5 टाइम्स है, पहले 1 मीटर था अब कितना हो गया 5 मीटर हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग कितना चेंजेस हो रहा है इसमें, 5 डिवाइडेड बाई 2
पूरा सॉल्व करके कितना आ गया 5/2 R1. सो R1 व्हाट इज R1 वी हैव, दिस इज नॉट R1. ओके, ये अभी नहीं है, इसको नहीं लेना है. R1 विल बी सेम ईयर, R1 इज इक्वल टू 3 ओम. R1 इज इक्वल टू 3 ओम. सो फाइनली यहाँ पे R1 की वैल्यू पुट करोगे. सो इसको सॉल्व करोगे 2.5 के साथ 3 की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 7.5 ओम. ओके, चलिए. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 26. 26 is a cell supply a current of 1.2 ampere through resistor each of 2 ohm connected in parallel. Two resistor we have given here, two resistors. In first conditions it is connected in parallel. ये parallel order में connected है. Now this time the battery, देखो what is the value of I1, 1.2. यहाँ पे जो करंट चल रहा है ना 1.2 एम्पियर का करंट चल रहा है. ओके, 1.2 एम्पियर का यहाँ पे क्या चल रहा है, करंट चल रहा है. नाउ क्वेश्चन इज a cell supply a current of 1.2 ampere through the two resistor of each 2 ohm connected in parallel. Okay, so here we have to find the internal resistance and EMF of the cell. So students, यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर इक्वल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस. सो एप्सिलॉन मुझे फाइंड करना है एंड आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई व्हेन इट इज कनेक्टेड इन द पैरेलल. सो पैरेलल में आई की वैल्यू है 1.2, बट आर इक्वल मैंने फाइंड नहीं किया है, इसका 2 ओम है, 2 ओम है. सो 1/2 फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा सर, 1/2 कितना बनेगा 1 ओम. इट मीन्स यहाँ पे आर इक्वल कितना आने वाला है 1 प्लस आर. ठीक है, दिस इज इक्वेशंस फर्स्ट. नाउ सेम प्रोसीजर फॉर द सेकंड वन. सो इन द सेकंड टाइम्स इट इज कनेक्टेड इन सीरीज वे. ओके, okay, when the resistance is connected in the series it supply a current of 0.5 ampere. I2 दे रखा है यहाँ पे, कितना दे रखा है 0.5 ampere. So now is this time 0.4 ampere and R this time it is connected in series. तो सीरीज में कनेक्टेड होगा तो this way. ठीक है सर. So 2 ohm and 2 ohm total resistance कितना हो जाएगा 4 plus R. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. सो बैटरी का जो EMF होता है इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे. सो कितना आ जाएगा 1.2, वी हैव 1.2. ठीक है सर, 1.2 इज इक्वल टू हाउ मच 1.2. ओके वेट, 1.2 इंटू 1 प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू दिस वन 0.4 इंटू कितना हो जाएगा 4 प्लस आर. ओके, नाउ अब इसको सॉल्व करो. दिस इज देखो 0.4 है, इसको इसका डिवाइड में ले जा सकते हैं, तो यानी कि डायरेक्ट हम कट कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट जाएगा. सो 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12. अब नाउ अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 प्लस 3 ऑफ आर इज इक्वल टू इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 एंड अगेन इस 4r के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4r. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ओ 4 दिस 4 तो ये 4 तो हमने कट कर दिया है, इस 4 को तो अंदर मल्टीप्लाई करना ही नहीं था. ओ चलिए, सो ये हो जाएगा 3 प्लस 3r इज इक्वल टू हियर 4 प्लस आर. नाउ सेपरेट करो वेरिएबल्स, इस r को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 3 ऑफ r माइनस r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 3r कितना हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1. सो इफ यू ऑप्टेन, सो r कितना आएगा 1/2. इट मीन्स 0.5 ओम. 0.5 ओम विल बी इंटरनल रेजिस्टेंस इन दिस क्वेश्चंस. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी. ठीक है सर, चलिए. नाउ नेक्स्ट वन इज इन सेकंड पार्ट क्या कैलकुलेट करना है, एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन मुझे यानी कि EMF सेल का EMF फाइंड करना है. सो सेल का EMF कैसे आएगा, सेल का EMF फाइंड करना है. सो क्या होगा, सो पुट द वैल्यू ऑफ R इन वन ऑफ द इक्वेशंस 1 और 2. ठीक है, किसी में भी रख सकते हैं. सो यू विल बी ऑब्टेन एप्सिलॉन इज इक्वल टू, सपोज दैट मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ. सो कितना हो जाएगा 1.2 इंटू R, देखो इसकी जगह 1 है और स्मॉल r कितना आया था हमारे पास 0.5. सो 0.5 सॉल्व करो. सो कितना हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1.5. सो करो फाइनली
कितना आ जाएगा सर ये? सो 15 टू जा 30, 3 कैरी, 15 1 जा 15 प्लस 3 कितना होता है 18। सो ये हो जाएगा 1.8 इज इक्वल टू 1.8 वोल्ट विल बी, क्या हो जाएगा 1.8 वोल्ट विल बी EMF ऑफ द सेल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी। चलिए, सो स्टूडेंट्स I am ending this sessions. We will meet day after tomorrow. Tomorrow is Sunday, so we will meet on the Monday. Okay, so your work is complete this work in your Fear notebook. Okay, thank you for watching this video. Thank you very much.